بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ محترم دوستو، امام العارفین، مجدد اعظم اور سلسلہ نوشاہیہ کے بانی حضرت سید نوشو پاک گنج بخش رحمت اللہ کی زندگی کے حالات اور واقعات کی قسط نمبر 3 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ کو کم سنی میں ہی علم لدنی عطا کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا سینہ نور بصیرت سے غیر معمولی طور پر کشادہ فرما دیا تھا۔ آپ کے استاد معظم حافظ قائم الدین صاحب باطن اور عارف تھے، لہٰذا انہیں نور باطن سے اس بات کا علم ہو گیا کہ حاجی محمد کا غیر معمولی طور پر علوم پر دسترت حاصل کرنا مشیت الہہ کا ایک سبب اور اہم راز ہے۔ استاد معظم اپنے شاگرد رشید کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، اے حاجی محمد، آپ کو علم لدنی سے سرفراز کیا گیا ہے اور اب آپ کو مزید تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علوم ظاہری باطنی کے اسرار و رموز سے آشنا کر دیا ہے، تاہم میرے لیے یہ بات ہی باعث فخر و نجات ہے کہ میں نے آپ کو چند علوم سکھائے اور ممکن ہے میرا یہ فعل ہی میرے لیے نجات کا باعث بن جائے۔ علم لدنی سے مالا مال ہونے کے باوجود حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ نے فقہ، حدیث، نحو، منطق، فلسفہ، کلام، معنی اور تفسیر کی تعلیم حاصل کی۔ آپ رحمت اللہ تجوید و قرأت اور علوم و فنون کے لیے شیخ عبدالحق عرف شیخ حقو کے مدرسے میں زیر تعلیم رہے اور اس تعلیمی مدارج کو طے کرنے کے بعد باقاعدہ مجاہدے میں مشغول ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ ریاضت کے دل دادا تھے، لہٰذا کم سنی میں شب بیداری کرتے، نوافل ادا کرتے اور تلاوت قرآن پاک سے خود کو تر و تازہ رکھتے تھے۔ 9 برس کی عمر کیا ہوتی ہے؟ چونکہ آپ رحمت اللہ مادرزاد ولی تھے اور ایک روایت کے مطابق حضرت غوث الاعظم کی اولاد پاک میں سے تھے، لہٰذا تزکیہ نفس کے لیے اور عروض و وظائف سے رغبت ان کی جبلت میں شامل ہو گئی تھی۔ آپ رحمت اللہ نے 9 برس کی عمر میں دریائے چناب کے کنارے ریاضت شروع کی اور 6 سال تک رات بھر دریا کے کنارے کھڑے ہو کر عبادت کرتے رہے۔ پھر نماز فجر کے لیے مسجد نوشہرہ تشریف لے جاتے اور دن بھر تلاوت قرآن پاک فرماتے۔ ریاضت میں آپ رحمت اللہ کا انہماک و استغراق بڑھتا رہا اور پھر جب آپ رحمت اللہ 17 سال کی عمر کو پہنچے تو آپ رحمت اللہ نے ترک دنیا اختیار کر لی۔ ساندل بار کے جنگل کے ویرانے اور تنہائی میں آپ رحمت اللہ نے تزکیہ نفس کی مشکل ترین منازل طے کر لی۔ اس دوران آپ رحمت اللہ روزے سے رہتے اور نماز مغرب کے وقت روزہ افطار کرتے۔ ساندل بار کے جنگل میں مجاہدے کی لذت نے آپ رحمت اللہ کو ظاہری ضروریات سے بیگانہ بنائے رکھا۔ آپ رحمت اللہ کے ارد گرد خطرناک جانور اور حشرات پھرتے رہتے، لیکن کوئی موذی شے آپ کے پاس بھی نہ جاتی۔ 5 کوس تک کسی انسان کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ آپ رحمت اللہ دن کی روشنی اور رات کے اندھیروں میں اکیلے تنہا بے خوفی سے یاد الہہ میں خود کو محو رکھتے اور اسی شوق عشق الہی نے آپ رحمت اللہ کو قطب الاولیاء کے مقام تک پہنچا دیا۔ آپ رحمت اللہ بچپن سے بے خوف اور شجاع تھے، لہٰذا اس ویرانے میں آپ رحمت اللہ پر کبھی خوف طاری نہیں ہوا تھا۔ حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک بار ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے آپ رحمت اللہ کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکوؤں نے گاؤں کو گھیر لیا۔ وہ تمام مردوں کو شکست فاش دے کر گاؤں لوٹنا چاہتے تھے کہ اچانک حضرت نوشو گنج بخش گھر سے باہر نکلے۔ آپ رحمت اللہ کے ہاتھ میں تیر کمان تھی۔ گاؤں کے سارے مرد ڈاکوؤں سے شکست و خوف کھا کر بھاگ گئے تھے۔ ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ ایک کمسن لڑکا تیر کمان سنبھالے ان کی راہ میں آ کر کھڑا ہوا ہے تو وہ کہے لگانے لگے۔ ان کا سردار حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ کی طرف دیکھ کر بولا، تو نے دیکھا نہیں؟ گاؤں کے سارے مرد بھاگ گئے ہیں، کیا موت تجھے یہاں کھینچ لائی ہے؟ موت سے صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی آگاہ ہے کہ کس نفس کو کب موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تم نے ظلم اور گناہ کیا ہے، بے گناہوں کا قتال کر کے تم گاؤں کو لوٹنا چاہتے ہو، لیکن ہمارے ہوتے ہوئے تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کر حضرت نوشو گنج بخش رحمت اللہ نے کمان پر تیر چڑھایا تو ڈاکوؤں کا سردار، جسے عام بچہ سمجھ رہا تھا،
वो डाकुओं की भारी जमीयत के लिए लश्कर जर्रार साबित हुआ। हजरत नौशुगंज बख्श रहमतुल्लाह ने तीर छोड़ने से पहले इन सब को खबरदार किया, मैं किसी को नाहक नहीं मारना चाहता, बेहतर होगा तुम वापस चले जाओ। अब अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मेरे निशाने से बच नहीं सकेगा। डाकू आप रहमतुल्लाह की धमकी को खातिर में ना लाए और आगे ही आगे बढ़ने लगे तो आप रहमतुल्लाह ने तीर छोड़ना शुरू कर दिए। जो डाकू आगे बढ़ता वो आप रहमतुल्लाह के तीर का निशाना बनता। आप रहमतुल्लाह का निशाना बड़ा पुख्ता था। रिवायत है कि आप रहमतुल्लाह तीर अंदाजी में इतने ताक थे कि एक तीर भी निशाने से खता ना जाता था। आप रहमतुल्लाह ने डाकुओं की भारी जमीयत को भागने पर मजबूर कर दिया। हजरत नौशुगंज बख्श रहमतुल्लाह बावकार और बारोब शख्सियत के मालिक थे। ऊंचा लंबा कद, मजबूत जिस्म, माथा कुशादा, चौड़ा सीना, मजबूत बाजू, रंग गंदमी, रोशन और मोटी आंखें, रुखसार पुरगोश्त और दांत चमकदार, दाढ़ी लंबी और गुंजान। आप रहमतुल्लाह रईसाना जाहो जलाल के मालिक थे, मगर जब चलते तो इंतहाई आजिजी और इनकसारी से जमीन पर कदम रखते, निगाह नीची होती और गुफ्तगू में नरमी बरतते। अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकत ने हजरत नौशुगंज बख्श रहमतुल्लाह को गोनागुन खूबियों से नवाजा था। आप रहमतुल्लाह दीन की तबलीग और रूहानी तरवीज में ही बुलंद पाया नहीं थे, बल्कि अपने ओहद के दस्तूर के मुताबिक खेती बाड़ी से लेकर कई दूसरे पेशों में भी महारत रखते थे। आप रहमतुल्लाह की तीर अंदाजी का जमाना मोतरफ था और ये बात ज़रबुल मिसल बन गई थी। जहाँ डाकुओं को मार भगाने और तीर अंदाजी का जिक्र होता, आप रहमतुल्लाह की महारत और शुजाअत का जिक्र किया जाता। आप रहमतुल्लाह ने दौराने तालीम ही शमशीर जनी सीख ली थी। आप रहमतुल्लाह दरियाए जनाब की तेजो सर्द लहरों में तैरा करते थे और मशाक तैराक बन गए थे। बहरे रूहानियत के शनावर तो थे ही, लिहाजा जब कोई हम उम्र और तजुर्बाकार भी तैराकी के लिए मुकाबले की दावत देता तो आप रहमतुल्लाह का मुकाबला करना किसी के बस में ना होता था। आप रहमतुल्लाह ने कागज पर सोने की पान चढ़ाना भी सीख लिया था। ये उस जमाने का बहुत नादिर, मकबूल और निहायत बारीक फन था। हजरत नौशुगंज बख्श रहमतुल्लाह इसमें ताक थे। आप रहमतुल्लाह को नबातात के अलूम पर भी दस्तरस थी। आप रहमतुल्लाह अदविया साजी भी करते और आपकी अदविया से बहुत से मूजी अमराज में मुब्तला अफराद ने शफा पाई। आप रहमतुल्लाह रोशनाई भी बना लेते थे। घुड़सवारी में भी आपका मुकाबला करना मुश्किल था। पहलवानी से भी आपको हद दर्जा रुग़बत थी। आप रहमतुल्लाह जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत थे। आप रहमतुल्लाह ने 29 बरस की उम्र में हजरत ख्वाजा सखी सुलेमान नूरी रहमतुल्लाह बलवाल के हाथ पर बैत से पहले लाहौर का दौरा किया था। लाहौर पहुंचते ही सबसे पहले आप रहमतुल्लाह ने हजरत दाता गनीबख्श रहमतुल्लाह के मिज़ार शरीफ पर इबादत और रियाजत की। इसके बाद लाहौर में मदफून तमाम बुजुर्गान दीन के मिज़ारात की जियारत के लिए निकले और साहबाने मिज़ारात से बातनी मुलाकातें भी की। लाहौर में रूहानी जियारतों के बाद आप रहमतुल्लाह में मुर्शिद की तलाश की तमन्ना ऐसी पैदा हुई कि आप रहमतुल्लाह किसी मर्द हक के दस्ते मुबारक पर बैत करने के लिए बेताब हो गए। गगन वाली वापसी से पहले आप रहमतुल्लाह ने अपने मसाजीन से ख्वाहिश जाहिर की और कहा, मैंने लाहौर में शरीयत और तरीकत के पहलवानों का तो जिक्र सुना हुआ है और जिस्मानी तौर पर तन आवर शाहजोरों का भी। मैंने मिज़ारात मुकद्दसा पर हाजिरियां दे ली हैं, लेकिन दिल चाहता है कि लाहौर के किसी नामी ग्रामी पहलवान से भी मिलता हुआ जाऊं। आप रहमतुल्लाह को मालूम हुआ कि इन दिनों बेजापुर से एक शाही पहलवान आया है। आप रहमतुल्लाह को इश्तियाक हुआ और आप शाही अखाड़े में चले गए। इस वक्त शाही पहलवान लंगोट कसकर अपने पट्ठों को दाव पेच सिखा रहा था। अगर कोई पट्ठा गलत दाव लगाता या इसकी हिदायत पर अमल ना करता तो शाही पहलवान गुस्से में आ जाता और पट्ठों को गालियां देने लगता। हजरत नौशुगंज बख्श रहमतुल्लाह को इसकी मुतकब्बराना उस्तादी पर ताज्जुब हुआ कि एक ताकतवर पहलवान अपने से कमजोर और खास तौर पर शागिर्दों को इस तरह भी गालियां दे सकता है। आप रहमतुल्लाह अखाड़े के पास ही खड़े होकर शाही पहलवान का जायजा ले रहे थे। वो गर अंडेल नुमा इंसान था। इसकी नजर आप रहमतुल्लाह पर पड़ी तो आपके कद काट को देखकर इसने उंगली आपकी तरफ उठाई और निहायत बदतमीजी से मुखातिब करने के बाद पूछा, तुम पहलवान हो? हाँ जी, मैं भी पहलवान हूँ, हजरत नौशुगंज बख्श ने दबी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। लड़ोगे?
लंगोट कस लो और जरा मेरे पट्टे के साथ एक पकड़ तो दिखाओ। शाही पहलवान ने आप रहमतुल्लाह के कसरती और मजबूत जिस्म का जायजा लेकर कहा, पहलवान जी, मैं आपके पट्टे से कुश्ती नहीं लड़ूंगा। आप रहमतुल्लाह ने अपनी आवाज कदरे बुलंद की। क्यों, क्या बात है, क्या ये तेरी दफ का है? शाही पहलवान ने आप रहमतुल्लाह का जवाब सुनकर तंजिया कहा, अगर तेरी दफ का भी है तो क्या हुआ, जरा मैं भी देखूं लाहौरियों की दफ में कितनी जान है। पहलवान जी, मेरा किसी दफ से ताल्लुक नहीं है। हजरत नौशोगंज बख्श रहमतुल्लाह ने इसे दावत मुबाजरत देते हुए कहा, मैं तो पहलवान जी आपसे कुश्ती करना चाहता हूँ। आप रहमतुल्लाह ने शाही पहलवान को अपने मुकाबले में क्या मांग लिया, अखाड़े में जैसे भौचाल आ गया। शाही पहलवान के पट्टे भड़क उठे और रानों पर हाथ मारकर आप रहमतुल्लाह की जानिब लपके। हमसे दस्त पंजा लड़ा, फिर हमारे उस्ताद को मांगना। शाही पहलवान, जो बदस्तूर आप रहमतुल्लाह को गहरी नजरों से देख रहा था, इसने पट्टों से कहा, ओए मुंडियो, सबर करो। आजा नौजवान, मैं तेरी हसरत पूरी करता हूँ। चल जा और लंगोट कस ले। हजरत नौशोगंज बख्श रहमतुल्लाह धीरे से मुस्कुराए, फिर तहम्मुल से कहा, पहलवान जी, कुश्ती भी लड़ लेते हैं, जरा पहले दस्त पंजा तो हो जाए। ये कहकर आप रहमतुल्लाह ने हाथ आगे बढ़ाया। शाही पहलवान एहसासे तफाखर से आगे बढ़ा। इसने अपना भारी और चौड़ा हाथ आप रहमतुल्लाह के हाथों में दिया तो दूसरे ही लम्हे इसे महसूस हुआ जैसे इसके पूरे जिस्म से जान निकल गई है। वो दर्द से बिलबिला उठा और आप रहमतुल्लाह के हाथ से अपना हाथ निकालने की कोशिश करने लगा। करीब था कि शाही पहलवान की उंगलियों से खून जारी हो जाता। वो चिल्लाया, मुझे माफ कर दे नौजवान, मेरा हाथ छोड़ दे वरना मेरी जान निकल जाएगी। आप रहमतुल्लाह ने इसका हाथ छोड़ दिया और फरमाया, पहलवान जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतनी ताकत देकर मेहमान बनाया और बादशाह के दरबार तक पहुंचा दिया, मगर आपने अपनी ताकत को तकब्बुर और जुल्म का वसीला बना लिया है। इतना ज्यादा गुस्सा ना किया करें। असल पहलवान तो वो है जो अपने गुस्से पर काबू पाता है। इस वाक़े से आपकी जुर्रत, ताकत और आजिज़ी जाहिर होती है। आप रहमतुल्लाह रूहानी तौर पर ताकतवर थे और जिस्मानी तवानाई से भी मालामाल थे, लेकिन आप रहमतुल्लाह हरगिज किसी मजलूम और आम इंसान पर अपनी ताकत जाहिर नहीं करते थे। मोहतरम सामीन, इस सिलसिले से वाबस्ता मजीद अहवाल हम आइंदा वीडियो में बयान करेंगे। इन दिलचस्प ईमान अफरोज वाक़यात से लम्हा ब लम्हा आगाह रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दें। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।